एडवोकेट हूँ, बोरिंग नहीं हूँ. People are thinking that advocates are really they are always, quarrelsome and they just want fight. But I am a creative advocate. Okay? I don't want that ki everybody should start their startup, but I want that everybody should start innovation. Okay? So today's presentation is basically about business legal model of startup for women. Just want to know कितने लोग हिंदी सीरियल्स देखते हैं? कोई भी? देखो, सर ने हाथ ऊपर किया, लेडीज हाथ ऊपर नहीं कर रही है. कितने लोग देखते हैं? जस्ट एनी सीरियल्स, ओके? और कितने लोगों के घर में, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि एवरीबडी इज गॉसिपिंग, बिकॉज एज अ वुमन आई नो गॉसिप इज आवर राइट्स, बट कितने घर में गॉसिप होता है सीरियल पिक्चर को लेके? मे बी मदर, डॉटर, सिस्टर और एनीवन होता है. डोंट यू थिंक हम सब में एक इनोवेशन है? अभी मैम ने तो स्टोरी टेलिंग के ऊपर ही पूरा लेक्चर ही ले लिया. ओके, इट्स ऑल अबाउट द फैंटेसी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन. सो स्टार्टअप इज बेसिकली अबाउट योर इनोवेशन. इट्स नॉट अबाउट दैट कि चलो आज मुझे स्टार्टअप करना है और मैं कुछ अलग करूं. इट्स लाइक दैट वॉट एवर वी वॉन्ट, वी हैव टू एनालाइसिस आवर गैप कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. हम सब टेलर के पास जाते हैं और अलग ही फैशन बोल देते हैं जो कोई भी टेलर को पता नहीं होता. एंड इट्स आवर इनोवेशन. और हम वही चाहते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए. और पीपल आर थिंकिंग दैट कि अरे ये तो फैशन मैम है ही नहीं, ये आउट ऑफ फैशन हुआ है. नहीं नहीं नहीं, इट्स लाइक दैट, इज इन फैशन. This is innovation. We are, as a woman, we all are having something different than men. And today we are going to learn about business legal module about your startup. Let's start. Picture बाकी है मेरे दोस्तों. I am basically a creative person, so I used to do such kind of presentation. This is me, already introduced to you. Okay, could you tell me what is the difference between a professional person and a business woman? Anybody? Anybody? कोई बोल सकता है मुझे कि प्रोफेशनल पर्सन एंड बिजनेस वुमन में डिफरेंस क्या है? हाँ या मैम? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. मैं आपको हमारे यस लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, सो इट विल मच बेटर टू अंडरस्टैंड. जो खुद का खाना खुद बनाती है वो प्रोफेशनल, और जो काम वाली बाई से बोलते ना खाना बनवाती है, दैट्स अ बिजनेस वूमन. क्योंकि बिकॉज professional persons are like advocate, doctors, healthcare professionals, then you can say fashion industry, yeah, cosmetic industry. They are doing their work by own. And the business woman, they are having a team, they are having a registered company, and they are doing their business by team. They are a managing director or a chairperson or the director, they are doing this. They don't do work by their own. This is the biggest difference, and because of this difference, many women who would really like to start their business, but they are stuck in their professionalism. Because इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, बस इतना ही करना है. Because I want to earn such kind of thing, means like 2,000 rupees daily or 3,000 rupees daily, up to 5 to 10,000 rupees daily. They are thinking like this. They want that the 3 lakhs rupees package is the best package per month, is okay for them. But as a businesswoman, if you are thinking like a man, they are trying for a turnover. They want to start
their businesses, they want to start their industries, and they would like to start their companies or n number of companies. So actually government startup, whatever the schemes are there, I'll tell you that they are helping women to start their own startup or get benefit from government startup. And as a business legal consultant for a startup, from several years, I'm doing this for women. So the difference you got very well. So are you ready to be a businesswoman? Oh, itna slow. Okay, fine. Thank you. हाँ, ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मुझे इन एवरी फील्ड और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड स्टैंड अप. मीन्स बहुत बार हम लोग नाम सुनते हैं, बहुत बार टीवी पे भी देखा है व्हाट इज द स्टार्टअप एंड स्टैंड अप और एनी स्कीम्स या गवर्नमेंट में न्यूज़ में भी आता है. तो बेसिकली वी शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अप एंड स्टार्टअप. स्टार्टअप मीन्स, अभी मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल देती हूँ. इफ यू वुड लाइक टू स्टार्ट एनी फूड कॉर्नर, इफ यू लाइक टू स्टार्ट एनी वड़ा पाव कॉर्नर, महाराष्ट्रियन फेमस वड़ा पाव, ओके, so that will just stand up because nothing, no invention in that, no innovative things in that, okay. So it is just a stand up, यानी जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके प्राइस वगैरह में बेचना चालू कर दिया. बट इफ यू want a startup, जम्बो किंग वड़ा पाव इज ए एग्जाम्पल. इट इज समथिंग डिफरेंट. बर्गर पाव बराबर है, वो बर्गर जैसा ही होता है. मोमोज, KFC, क्यों हम लोग तंदूर नहीं बनाते क्या? तंदूरी तो सबके घर में बनती है, लेकिन दे स्टार्टेड इन डिफरेंट वे. सो दिस इज द पीपल वांट इनोवेशन. अभी फूड में जितने भी स्टार्टअप आए हैं, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू एज अ कंसल्टेंट आई एम वर्किंग, 70 to 80% जितने भी स्टार्टअप आइडियाज़ है उनके हस्बैंड को, उनके फादर को, उनकी बेटियों ने, वाइफ ने या मदर ने ही दिए हुए. ओला पकड़ लो, उबर पकड़ लो या कोई भी पकड़ लो, रेड बस पकड़ लो. इफ़ यू गो फॉर देयर स्टोरीज तो आपको पता चलेगा कि उनके मम्मी को प्रॉब्लम हुआ था या उनके वाइफ को प्रॉब्लम हुआ था, उनको फूड नहीं मिला था, इसके वजह से ही हुए. So we are a pioneer for this, and I think we have to round applause for us. कि इतने सारे मतलब ना गवर्नमेंट के GDP पे हमारा हाथ है और फिर भी हम लोग खुद के स्टार्टअप नहीं करते. वी आर जस्ट सपोर्टिंग और बीइंग जस्ट अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी. सो टुडे इज द मेजर डिफरेंस इज दिस कि इफ यू आर हैविंग एनी आइडिया, इफ यू आर हैविंग एनी आइडिया, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनी स्टार्टअप, ओके. एंड दिस विल द बेस्ट बेनिफिट, क्योंकि फंडिंग उनको ही मिलती है गवर्नमेंट से या प्राइवेट फंड से कि जिनकी आइडिया बेस्ट हो. सो डोंट डू थिंक डिफरेंटली. हम जब अब एक पकड़ लो, हमें किसी तैयारी करनी रहती है, अभी इधर ही आना है, तो एक वीक से हमारा प्रिपरेशन रहेगा. व्हाट विल आई वेयर, हमें कैसी दिखूंगी, एंड कैसे लोग मिलेंगे, मुझे नेटवर्किंग भी करना है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, देन कैसे मुझे बिहेव करना है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. आई जस्ट केम फ्रॉम कोर्ट, मैंने पेपर सबमिट किए, चेंज किया और इधर आ गई. तो ये प्रिपरेशन होता है बिकॉज वी आर लाइक दैट, वी आर हैविंग दैट इनबिल्ट क्वालिटी. जो फैक्टर्स स्टार्टअप में लगते हैं, तो मैं आपको ये मैंने लिख दिए, दिस इज द स्टार्टअप मॉड्यूल. इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है स्टार्टअप में. बट यू शुड प्लान फॉर दिस. आपको प्लान करना पड़ेगा. यू कैन टेक फोटोग्राफ ऑफ दैट, आई डोंट माइंड फॉर दिस बिकॉज इट्स ओनली फॉर यू. आइडिया इनोवेशन, जब आइडिया होगा तभी स्टार्टअप होगा. सो ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन आइडियाज. तो मैं थोड़ा हेल्प करूँगी आइडियाज़ के बारे में. राइट लीगल स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन में आने वाला है. परमिट, रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस. अगर आप कोई कंपनी करते हो, जो भी आपका स्टार्टअप है,
तो यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग. अगर आप प्रोफेशनल भी हो एंड इफ यू रियली वांट टू डू एवरीथिंग लीगली, अभी आपको तो पता है बहुत सारी चीज़ लीगल इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेसेस में या प्रोफेशन में. सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दो स्टफ. ओके, आईपीआर वो भी बता दूंगी मैं. कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंडर्स, हमें जो भी अभी कैसे होता है, मोस्टली बहुत बार ऐसे होता है कि कोई फैशन इंडस्ट्री में है सपोज, एंड वेंडर्स बदल जाते हैं, क्वालिटी बदल जाती है. तो वी हैव टू बी पर्टिकुलर. हमें कॉन्ट्रैक्ट करके लेना है, कोई भी चीज़ लीगली करनी है, और हमेशा एग्जिट प्लान रखना है कि अगर सपोज वो वेंडर नहीं चाहिए, इफ़ यू आर डूइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें वो चीज़ बहुत मायने है कि हम उसमें ये क्लॉज डाल दें कि अगर एग्जिट करना है तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल गेट प्रॉब्लम. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. अगर आपके कोई क्लाइंट्स है एंड यू आर रनिंग एनी सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल की जहाँ साल का पैकेज होता है, तो अगर मिस ट्रैवल पैकेज में बहुत बार ऐसे होता है. ट्रैवल इंडस्ट्री, वन ऑफ माय एक्चुअली फ्रेंड, शी इज़ रनिंग दिस बिजनेस ट्रैवल एज अ ट्रैवलोग्राफी, एंड जो बोलते ना पैसे आधे ही देते हैं एंड सम मनी रिमेनिंग, एंड बाद में वो लीगल इश्यूज तो हो जाते हैं बहुत बार. तो यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट योर लाइफ, यू हैव टू पर्टिकुलर अबाउट योर बिजनेस. हमें बैलेंस रखना है हर चीज़, और हर चीज़ में देखो कैसे कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो बेटर वे जो भी है आपके अभी नहीं तो लेकिन बाद में सही, लेकिन हर नॉर्म्स वो हमें पर्टिकुलरली करनी ही है. ओके, तो उसके बाद आता है फिनेंशियल मॉड्यूल. मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर लेडीज़ के लाइफ में 3 फेजेस जैसे होते हैं, चाइल्डहुड, वाइफहुड एंड बाद में मदरहुड. वैसे ही हर बिजनेस में एक रहता है क्रिएशन, सेकेंड रहता है सर्वाइवल, एंड तीसरा रहता है ग्रोथ. अगर तीनों फेजेस अच्छे से हो तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, या हमारा कोई भी प्रोफेशन हो वो आगे बढ़ सकता है. तो फर्स्ट थिंग क्रिएटिविटी में, तो ये पूरे जो पॉइंट है अप टू 5th, ये हमें क्रिएटिव बनाते हैं, यानी हमारा मॉड्यूल क्रिएट करते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो भी फाउंडेशन है वो अच्छे से करते हैं. और बाद में जो है कैश फ्लो, फिनेंस मॉड्यूल. बहुत बार ऐसे होता है किसी ने ट्राई किया है कि इफ़ यू पुट 2000 रुपीज़ इन योर वॉलेट, ओके, एंड उसके बाद ऐसे पता ही नहीं चलता कि पैसे कब ख़त्म हो गए. बहुत बार हाँ होता है ना, क्योंकि हमारा वॉलेट मैनेजमेंट ही नहीं है बराबर. बहुत बार ऐसे होता है कि जितना भी पैसा रखो ना वॉलेट में वो खर्चा ही होता है, कम ही पड़ता है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. ऐसा नहीं होता अरे इतने 2000-3000 बच गए चलो बाजू में रख देते, ऐसे कभी नहीं होता है. क्रेडिट कार्ड में हमेशा ना, अगर नहीं है ना फिर भी ऐसे एक्सपेंसेस हम लोग भर भर के करते हैं. दे नोज दैट्स व्हाई दे आर डूइंग ना कि अरे फ्री है ले लो क्रेडिट कार्ड. तो इट्स लाइक दैट कि फिनेंशियल मॉड्यूल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए. इट्स अ बैकबोन ऑफ योर एनी प्रोफेशन. इफ़ यू आर अर्निंग, if you are managing your home, then also this module is the best module for survive, growth and whatever. Everything is depend upon your this module. If you really want to grow your business, if you really want to grow your personality, you have to be perfect in this module. उसके बाद आता है बिजनेस प्लान एंड कैनवस. जो भी आप करने वाले हो उसे एक पेपर पे लिखो, जो भी है. You can get n number of business plan templates on net. You can download that very well. फंड रेजिंग की जो बात है वो कैसी है मालूम है? इफ़ यू आर बेस्ट इन आइडिया इनोवेशन यू विल डेफिनेटली गेट फंड्स. इवन दो अगर आपके आइडिया अच्छे हो तो पहले घर वाले ही फंड करते हैं. मीन्स 3 lakhs to 5 lakhs का जो भी फंडिंग पहला होता है, जिसे हम लोग एंजल फाइनेंस बोलते हैं, वो हमेशा हमारे फैमिली से ही होता है या हमारे सेविंग से होता है. सो ये जो है फंड रेजिंग तभी होगा व्हेन आप कुछ तो आपके 100 क्लाइंट या 100 सब्सक्राइबर बन जाएंगे जो रिपीटिंगली आपको ऑर्डर देते हैं इन 6 months. देन ओनली पर्सन कैन बिलीव कि आपको अगर मैं फंड देती हूँ या देता हूँ तो यू कैन सर्वाइव इन दिस बिजनेस. सो
remember this, if you want to start any business or if you want to come in any profession, you should be particular about this. You have to make a such plan कि जो पैसे डाले हैं उसमें से रिटर्न आ रहे हैं, क्लाइंट ले रहे हैं. इट्स लाइक दैट. उसके बाद आता है इन्वेस्टर पिच, यानी हमारा खुद का, जैसे एक पता ना एक लेक्चर कि अगर हम किसी के पास जाते हैं, अगर मैं आपको किसी ने मुझे बोला कि मैम व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट योर स्टार्टअप इन एडवोकेसी और इन लीगल, सो आई कैन से दैट कि हाँ, माय बेसिक एजुकेशन इज दिस, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, दिस इज माय इनोवेटिव आइडिया. एंड आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, 10 नंबर ऑफ इतने पीपल हैं जिनको लीगल हेल्प लगती है या कोई भी हेल्प लगती है, तो आई विल बी अ पायनियर फॉर दिस थिंग्स, आई एम डिफरेंट देन अदर्स. यही चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट टीचिंग में. तो ये आपको पता होनी ज़रूरी है. ये जस्ट एक मॉड्यूल है जो आप सब फॉलो करोगे. हाँ, अभी ये इनोवेशन के ऊपर आ गए. विमेन आर बेसिकली सॉफ्ट इमोशनल, देन loving and caring, shopaholic, fashion trendy, more focused and steady. So if you would like to start your startup in some industry, the industries are basically fashion, food, travel, education, languages, designing, house decor, household, management, events, administration and childcare. These industries are open for women in India and you can do best in those industries. So try to remember this. This अभी आपने देखा होगा कि फूड में भी बहुत सारे स्टार्टअप आए हैं. So you are having n number of recipes, you are having n number of knowledge, you can start your own recipe or you can start your own thing in food, in fashion and whatever which is more comfortable for you. अभी तो आपने देखा होगा कि गौरी खान पकड़ लो या सूजन का देखो, वो हाउस डेकोर में है, उनके खुद के ब्रांड है. शिल्पा शेट्टी इज इन योगा एंड ऑल, उसने खुद का चालू किया है वो. सो वी हैव टू बी वेरी फोकस और कॉन्शियस दैट कि क्या कर सकते हैं. अगर ये इंडस्ट्रीज में लेडीज आती है तो तुरंत उनको फिनेंस मिलता है बिकॉज दे आर रिलेटिंग टू दोज इंडस्ट्री. उनको ज़्यादा नॉलेज है, कोई भी मैन आपको क्वेश्चन नहीं करेगा फैशन के लिए. सो वी हैव टू बी पर्टिकुलर कि कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए. अब आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो पर्सन के नारे इतना टेक्नैलिटी है तो नहीं, मोस्टली आपको रिजेक्शन आ जाए. बट दिस इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू अस, सो वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दोज इंडस्ट्रीज. अभी लीगल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए. एक है जनरल पार्टनरशिप, बराबर, उसका खर्चा नियर अबाउट 6000 के आसपास आता है. इफ़ यू वुड लाइक टू स्टार्ट योर स्टार्टअप लीगली. द सेकेंड थिंग, 1 पर्सन कंपनी. फ्रॉम 2013 1 कंपनी यानी OPC स्टार्ट हो गया कंपनी एक्ट से. अगर मैं अकेली हूँ और मुझे कोई पार्टनर नहीं लेना है और मुझे खुद की कंपनी चालू करनी है, बिकॉज मोस्टली वुमेन दे आर डूइंग देयर बिजनेस ऑन प्रोप्राइटरशिप. अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी कंपनी बंद हो जाती है. अब जनरली अगर कोई पर्सन पैसे लेते हैं तो वो आपको पता रहेगा दे आर प्रोप्राइटरशिप में ही होते हैं मोस्टली. सो ट्राई टू इंट्रोड्यूस OPC. आप 1 पर्सन कंपनी में जाओ, यू विल गेट रजिस्ट्रेशन, यू विल गेट ऑल एंटिटीज अबाउट दिस. यू कैन स्टार्ट लाइक योर ओन कंपनी और उसमें आप नॉमिनेशन डाल सकते हैं. इफ़ एनी केस कुछ हो जाता है सपोज, तो वो नॉमिनी के ऊपर वो कंपनी चली जाती है. मीन्स यानी जो आप ब्रांड क्रिएट करते हो इट विल हेल्प यू आउट. तो आपके जो भी नॉमिनी है उनको मिलने के लिए OPC's benefit like this कि it's a separate entity like you. Okay, it is artificial personality. Miss, if you get any loan and if you cannot pay loan, तो as per bankruptcy act पर्सन क्या नॉट, मैंने बोलते ना कि हमारा घर बार में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो हाँ, दैट इज अ मेन एडवांटेज कि एज अ कंपनी आपके पास पैसे नहीं. अभी जितने सारे बैंक्स डूब जाती है, बराबर है, तो उनको भरना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आता है. क्यों पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी दे आर समथिंग डिफरेंट इन OPC.
सो यू कैन स्टार्ट देयर थिंग। और आपको फंड्स मिलने हैं, लोन मिलना है, तो ओपीसी इज द बेस्ट वे। अगर प्रोपराइटर है तो आपको वही क्वेश्चन वो मैनेजर्स पूछेंगे कि अगर इसको कुछ हो गया या कुछ हो गया तो आगे क्या, लोन कैसे मिले, अब मिस ये होगा। तो इसमें वैसे नहीं रहता, इसमें नॉमिनी रहता है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, यू कैन गेट फंडिंग, यू कैन बी मेक मेनी डायरेक्टर आफ्टर द सक्सेस। तो ये बेनिफिट 2013 से चालू हो गया है। सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि ये होना पता होना जरूरी है। देन एलएलपी पार्टनरशिप, जो जनरल पार्टनरशिप थी उसमें 2008 से एक नया मोड आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी। मीन्स अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो उसके जगह पे नया पार्टनर आप ले सकते हो। पुराने पार्टनरशिप में ऐसा था कि अगर दो पार्टनर ब्रेक होते हैं तो वो ब्रांड ब्रेक होता था, यानी वो ब्रांड एग्जिस्ट नहीं रहता था। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। और प्राइवेट लिमिटेड इज द, यू नो, इज अ कंपनी, 2 or more director, they can start their own company. This is a company, जैसे मैं बोल रही हूँ बिजनेस वूमन एंड प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल पर्सन कैन गो फॉर वन ओपीसी। एज पर माई सजेशन एज ए एडवोकेट आई कैन सजेस्ट दैट कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, फंड्स रेज करना है, यू वांट टू रजिस्टर योर स्टार्टअप ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट, सो यू हैव टू गो फॉर ओपीसी, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये नहीं करोगे तो यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टअप प्रोग्राम, because yes ma'am, other also, but I am talking about the proprietors person. If a person is a fashion designer and he is a proprietor or she is a proprietor and would like to start their own brand, so it will be much benefit. Okay, so IPR, copyrights, trademarks. Okay, so then food and drugs, these are the licenses, you can get that. If you are related to that field, you can you have to register that. Startup rules, startup innovation idea, business should not उसके ये रूल्स है। अगर आपको गवर्नमेंट में, जैसे उसके बेनिफिट में आपको बताती हूँ स्टार्टअप के क्या है, तो उससे पहले ये समझ लीजिए इनोवेटिव आइडिया होनी चाहिए। 7 ईयर से कम वाला बिजनेस ही स्टार्टअप में रजिस्टर होता है गवर्नमेंट में। ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड या जनरल पार्टनरशिप में वो रजिस्टर चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए हमारे बिजनेस को। टर्नओवर जो है कोई भी साल का 25 मीन्स 25 सीआर से ऊपर नहीं होना चाहिए, देन ओनली दैट इज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप यानी हमारा स्टार्टिंग है ना, तो उससे बेटर नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऐसे स्प्लिटिंग, जैसे स्प्लिट हो गई है कंपनी या रिकंस्ट्रक्ट हो गया बिजनेस, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं चाहिए। इट शुड बी, यू कैन से, यंग, इनोवेटिव एंड न्यू बिजनेस। तो ये रूल्स है स्टार्टअप के। हाँ, ये मुझे दिखाना था आपको। टैक्स बेनिफिट, स्टार्टअप में 3 साल के लिए इनकम टैक्स नहीं होता है। कैपिटल गेन टैक्सेस में भी एग्जेम्पशन होता है। 80% पेटेंट फाइलिंग, अगर आपका कोई पेटेंट है सोलर वगैरह बिजनेस में तो आपको बेनिफिट होता है। 50% ऑफ ऑन ट्रेडमार्क फाइलिंग। 18 स्टेट है जहां स्टार्टअप के लिए बेनिफिट है, अगर आप रजिस्टर वहां करते हो तो। लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉ में जो इंस्पेक्शन होता है, जैसे अब फूड वगैरह में तो लेबर रिलेटेड या कोई पोल्यूशन रिलेटेड चीज़ होती है, तो 3 years to 5 years वहाँ कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होता है, जैसे हर साल होता है नॉर्मली बिजनेसेस में। तो ये बेनिफिट है स्टार्टअप्स के। हाँ, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है। सब्सिडी 30% ऑन लोन, ओके, मीन्स अप टू 30% आई कैन से। भारतीय महिला बैंक फॉर लोन अप टू 20 CR फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में भारतीय महिला बैंक, ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत 20 CR तक हमें लोन मिल सकता है, हमारा प्रोजेक्ट वैसे रहे तो। देन स्त्री शक्ति योजना लोन अप टू 50 lakhs फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, वो एक सेकेंड है। अन्नपूर्णा स्कीम, जो फूड बिजनेस में आना चाहती है उनको अगर छोटा कुछ चालू करना है तो अप टू 50,000 रुपीज़ लोन मिलता है। एंड उद्योगिनी स्कीम लोन अप टू 1 lakhs, मीन्स अगर 1 lakhs का लोन लेना है तो यू कैन गेट दिस। एंड ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टार्टअप यू विल गेट ऑल दिस स्कीम, योर क्राइटेरिया। उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑब्वियसली सबमिट करना पड़ेगा उनके लिए।
गवर्नमेंट में लास्ट ईयर से एक नई चीज़ शुरू हुई है, जैसे 8 मार्च आता है इंटरनेशनल वुमेन डे, उससे पहले मिस फ्रॉम फेब्रुअरी यू विल गेट कि उसमें फ्री को वर्किंग स्पेसिस फ्री दिए जाते हैं. यू हैव टू रजिस्टर योर नेम, योर वॉट एवर योर बिजनेस ऑन दिस वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट. स्पीड मेंटोरिंग जो होती है उनके फ्री सेशंस मिलते हैं. ये सब मार्च में मिलता है मोस्टली. तो यू हैव टू बी अवेयर कि अभी आ रहा है, तो फेब्रुअरी से आई विल शो यू दैट वेबसाइट. ओके, स्टार्टअप इंडिया gov.in. You will get all information about these schemes there. After that, how many of you are from Maharashtra? Okay, this is the, you know, means you can say like that ki this is the golden opportunity to explore your business or explore your services. udyogsakhi.org. You can register your business on government website. You will get startup certification, Udyog Aadhar card from that, and you can get a client, because many women, this is specially website started for Guptesh sir started. He was a MSME ex-director. He started this website only for women of Maharashtra. udyogsakhi.org. You go there and you register your name for your business opportunity, or you can get business opportunity too on that website. So you will come to know ki how is the business, how is the services. If you would like to take agency, or if you would like to start your own franchisee, you can get knowledge about that, or you can register your business too on that website. These are the laws that basically apply to startup. The first thing, company registration, then labor laws, then intellectual property, taxation laws, security laws, then business and finance, information act and cyber law, contract and setting. If you are eligible for those laws, then only these laws can be applicable on your business. This is our services. Generally, we are starting with this, and this is my number. You can connect me with this. Thank you, all of you. Actually, I want to give you more things, but actually, in the short, I guess I explain all startup module, because it's a 3 month kind of program. If you would like to register, or you have to do something best in startup, but I'm trying to give my best in this. And thank you all of you. All the best to you. And thank you IWC gave me a chance to present this module. Thank you very much. Thank you, ma'am. Could we have a huge round of applause? Thanks for watching. Please subscribe to India's first corporate news channel. We invite interviews, articles, press releases from your organization. Visit our portal www.indianconventions.com. Thank you.